مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ خداوند کا کلام میرے اور آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور میری اور آپ کی راہ کے لیے روشنی ہے۔ سو آج ہم اپنی ہدایت کے لیے خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے متی رسول کی انجیل، اس کا 27واں باب، اس کی 50ویں آیت سے 52ویں آیت تک۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور دو ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ آمین۔ عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کی موت کے حوالے سے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کا مکاشفہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنی جان دیتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں، تو اس کی موت کی برکات کیا ہے، اس میں کون سے راز چھپے ہوئے ہیں جن کو ہمیں بائبل مقدس سے جاننے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، جو بھی حوالہ ہم نے پڑھا، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی، لکھا یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ اور کیا ہوا جب جان دی؟ لکھا زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ پہلا کام یہ ہوا کہ جب یسوع مسیح جان دے رہے ہیں تو مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ مقدس کا پردہ پھٹ گیا، اور یہ پردہ جس کے بارے میں خروج 26ویں باب کی آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، 33 جو ورس ہے، یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ یہ جو پردہ پھٹتا ہے جب خداوند یسوع مسیح جان دیتے ہیں تو پردہ پھٹ گیا۔ اب یہ پردہ جو تھا، یہ پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ پردہ حائل تھا۔ پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے اس پردے کو ہٹانا پڑتا تھا، اور یہ سال میں ایک دفعہ سردار کاہن جو تھا وہ اس پردے کے پیچھے جاتا تھا، یعنی پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا۔ اب یہ پردہ پھٹ گیا، اور یہ جو پردہ تھا یہ 70 فٹ لمبا تھا اور یہ 30 فٹ چوڑا تھا، اور یہ پردہ 4 انچ موٹا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر بیلوں کی 2 جوڑیاں اس کو مخالف سمت میں کھینچیں تو پھر بھی یہ پردہ نہیں پھٹتا تھا۔ لیکن زبردست بات یہ ہے کہ یہ پردہ پھٹ گیا، اور خاص طور پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ بائبل مقدس کو گہرے طور پر بٹوین دا لائنز پڑھیں، اس کو نظر عمیق سے پڑھیں، تو لکھا ہے پردہ اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک یہ پردہ نہیں پھٹا، کسی انسان نے نہیں پھاڑا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ پردہ اوپر سے پھٹا تھا، یہ خدا کی طرف سے یہ پردہ جو ہے یہ فاش ہو گیا، یہ پھٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو جدائی کی دیوار تھی، صرف ایک شخص سال میں ایک دفعہ یہاں پہ جا سکتا تھا، لیکن پردہ پھٹ جانے سے وہ جدائی کی دیوار ختم ہوگی۔ ہیلیلویا۔ اور اب ہر کوئی جو یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہوا ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے، وہ بے دھڑک بغیر کسی خوف کے وہ پاک ترین مقام یعنی خدا کی حضوری، خدا کے جلالی تخت فضل کے تخت کے سامنے دلیری کے ساتھ جا سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سب خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ پردہ پھٹا کب؟ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی۔ ہاللیلویا۔
अब हम बराह रास्त, अब डायरेक्ट हम खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। और पतरस के खत में हमें कहा गया कि हम शाही काहिनों का फिरका हैं। हालेलुया। सो पर्दा जब फटता है तो क्या होता है? अगर पर्दे को हटाएं तो पर्दे के पीछे जो चीजें पड़ी होती थी वो नजर आ जाती थी। ठीक है, अब ये पर्दा फट गया, पर्दा हट गया, और जो कुछ पर्दे के पीछे था वो सब कुछ जाहिर हो गया, वो अया हो गया। खुदा जब इस दुनिया में आए इंसान बन के, तो उसने अपने आप को इंसानों पर जाहिर कर दिया। जब खुदा ने अपने आप को इंसानी शक्ल में आकर इस दुनिया में अपने आप को जाहिर कर दिया, तो फिर बाकी चीज़ों की क्या हैसियत है, बाकी चीज़ों की क्या वक़्त है कि वो जाहिर ना हो। और फिर जब पर्दा हटता है तो फिर सब कुछ वाज़े हो जाता है, अया हो जाता है, जाहिर हो जाता है। सो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, यीशु मसीह की मौत के वसीले से ये बड़ा काम हुआ। हालेलुया। फिर दूसरी बात लिखी है कि जब यीशु मसीह जान दे रहे हैं, जब जान दे दी तो कब्रें खुल गईं। ये कैसी मौत है? खुदा यीशु मसीह मर रहे हैं और कब्रें खुल रही हैं। हालेलुया। और कब्रों से पत्थर हट गए, क्योंकि उस जमाने में जो कब्रें होती थी उन पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, और फिर ये ऑटोमेटिकली जो पत्थर थे वो हट गए, और फिर ये कब्रें खुल गई। यीशु मसीह की ये जलाली मौत है। हालेलुया। यीशु मसीह की मौत जो है वो कब्रों को खोल रही है। और तीसरी बात फिर लिखा है कि बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। हालेलुया। अब यीशु मसीह मर रहा है और मुकद्दस जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया। ये कैसी जबरदस्त मौत है। यीशु मसीह की जो मौत है वो क़यामत लेकर आ रही है। हालेलुया। यीशु मसीह की मौत, उसका मरना, उससे मुकद्दसीन जो है, जो मुकद्दस लोग हैं वो जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जी उठा तो फिर उसके मरने से मुकद्दस जो है वो जिंदा हो रहे हैं। तो यीशु मसीह के जी उठने से, उसकी क़यामत से फिर क्या कुछ नहीं हुआ होगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना भी ये एक सबूत है, ये एक दलील है कि जो मर गए वो फिर यीशु मसीह के वसीले से वो भी जी उठेंगे। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और फिर क्या हुआ यीशु मसीह की मौत से? चौथी बात जो हम देखेंगे, रोमियो 5वें बाब की 10वीं आयत, के यीशु मसीह की मौत से खुदा से हमारा मेल हो गया। हालेलुया। और रोमियो 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया। लफ्जों पर आप गौर करें, आयत पर गौर करें, क्या लिखा है? उसके बेटे की मौत के वसीले से। सो उसकी मौत वसीला है जिसके वसीले से हमारा खुदा से मेल हो गया, मिलाप हो गया, सुलह होगी। जो नाराजगी थी वो जाती रही। हालेलुया। सो फिर कुलुसियों पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर लिया। हालेलुया। सो दोनों इन हवालों में लफ्ज मेल हो गया, मेल कर लिया। सो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह की मौत के लिए। और यीशु मसीह की जो मौत थी वो कफारे की मौत थी। दुनिया में वाहिद मौत, वाहिद डेथ, ये कफारे की मौत थी। और कफारे का मतलब है गुनाहों को ढांप देना। और यीशु मसीह का खून जो है, जिसके वसीले से हमारा कफारा दिया गया, हमारे गुनाहों को ना सिर्फ ढांप दिया गया बल्कि मिटा दिया गया, हमारे गुनाहों को हटा दिया गया। हालेलुया। सो ये सब कुछ यीशु मसीह की मौत के वसीले से हुआ। फिर पांचवी बात, इब्रानियों 2 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस, इब्लीस को मौत पर कुदरत हासिल थी। लिखा यानी इब्लीस को तबाह कर दे। सो यीशु मसीह की मौत दर हकीकत मौत की मौत थी। यीशु मसीह की मौत दर हकीकत इब्लीस की तबाही थी।
इब्लीस को बर्बाद कर दिया गया, इब्लीस को तबाह कर दिया गया। हालेलुया। और इब्लीस खुश हो रहा होगा कि मैंने खुदा के बेटे यीशु मसीह को मार दिया, हलाक कर दिया, वो मसलूब हो गया, वो बलिदान हो गया और उसका मैंने खात्मा कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यीशु की मौत दर हकीकत मौत की मौत थी, इब्लीस की मौत थी। हालेलुया। और लिखा इब्लीस को तबाह कर दे। वो अपनी मौत के वसीले से इब्लीस को तबाह कर रहा है। और तबाह के लिए जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है जीरो करना, सिफर करना, बेबस कर देना, मफलूज कर देना और बेअसर कर देना। हालेलुया। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो मेरे और तेरे गुनाह अपने ऊपर ले, वो सलीब पर चढ़े, वो मरे, वो दफन हो, क्योंकि मौत के वसीले से कफारा था। अगर आज कुछ लोग ये कहते हैं जी कि वो मारा नहीं गया, वो जिंदा उठा लिया गया, मौत देखे बगैर वो उठा लिया गया, अगर यीशु मसीह की जिंदगी में से आप मौत को निकाल दें तो फिर इसका मतलब है आप कफारे को निकाल रहे हैं। यीशु मसीह की मौत का इनकार करने का मतलब यह है कि आप कफारे का इनकार कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि इब्ने आदम मारा जाएगा, उसको मौत के हवाले किया जाएगा और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो मरा, दफन हुआ, फिर जी उठा। हालेलुया। जो मरता है वही तो जिंदा होता है। यीशु मसीह जिंदा आसमान पर गया लेकिन जी उठने के बाद। हालेलुया। सो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। यीशु मसीह हुआ तेरे लिए, मेरे लिए, ताकि हम उसकी मौत के वसीले से जिंदगी पाएं। खुदावन आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।